Okay, assalamu alaikum. So the topic here is section formula. Section formula. This is the second topic of the coordinate geometry. So ये क्या बोलता है section formula? Section formula says that if we have a line, let's suppose we'll draw a line. So this is my line. And let's suppose this is my A and this is my B. Okay. Let us suppose A have some coordinates x1, y1 and B has a coordinate x2, y2. ओके सो ये जो थ्योरम है सेक्शन फॉर्मूला जिसका नाम है ये क्या बोलती है? ये बोलती है अगर एक पॉइंट P है, लेट अस सपोज पॉइंट P whose coordinates are x, y, it divides this AB line in the ratio m is to n. So this is m is to n. So what does it mean? It means that AP by PB should be equal to m by n. Or I can say that AP is to PB is equal to m is to n. Clear? So then the theorem says that the section formula says that the coordinates of the point which divides this AB line, again I'm repeating, the coordinates of this point P which divides the line AB in the ratio m is to n has coordinates, the coordinates of, according to the theorem, the coordinates of point P are, the coordinates of point P are, क्या है coordinates? तो यहाँ पे लिखते हैं वो coordinate क्या है. So the x is, जो इसका x coordinate है वो theorem बताती है that is mx2, clear, plus nx1 divided by m plus n, and the y coordinate is my2 plus ny1 divided by m plus n. Clear? Okay, so this is the coordinate of point P. Now this is actually the this is called the internal division. क्योंकि हमारे पास डिवीजन के दो तरीके होते हैं. whenever a point divides a line, it can divide in two ways. Okay, one such way is called the internal division and the second one is called the external division. तो ये जो यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया, this was internal division. That means ये जो पॉइंट P है ये AB को डिवाइड करता है m is to n रेशियो में, मगर इंटरनली. इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन. क्लियर? दूसरा होता है एक्सटर्नल डिवीजन. एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब मैं आपको दूसरी स्लाइड पे बता देता हूं. तो वो अगर हमारे पास एक लाइन है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक लाइन है एंड लेट अस सपोज दिस इज माय A and let's suppose this is my B. Now the point P which divides this AB is not inside this AB. Let's suppose this AB has a coordinate x1, y1 and x2, y2. इससे पहले क्या होता था? P पॉइंट होता था AB के बीच में कहीं पे, ठीक है. लेकिन अब P बाहर है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन. इस पे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन तो भी कॉन्सेप्ट थोड़ा दिमाग में रखो, एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या फर्क होती है. तो एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है काम? देखिए यहाँ पे अब सर m किसको लेना है और n किसको लेना है. यहाँ पे ये जो ये AP होता है, सेम वही जैसे पिछले, अगर हम पिछली स्लाइड वापस देखेंगे वहां पे था AP by PB. सेम इज द केस हेयर, वी विल टेक AP by PB. So that means AP will be your m and PB will be your n. सेम वैसे ही. तो इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल डिवीजन. आई होप इट्स क्लियर टू यू. ओके, सो इट्स इक्वल टू m is to n. नाउ वी नीड टू प्रूव दिस. हमारे सिलेबस में ये एक्सटर्नल डिवीजन क्लास 10th में नहीं होता है, बट ये जो सेक्शन फॉर्मूला हम इंटरनल डिवीजन के लिए पढ़ रहे हैं ये तो हमें पढ़ना है. क्लियर? तो इसको प्रूव करते हैं. लेट अस टेक दिस, इसको हम प्रूव करते हैं अब.
चलिए बेटा प्रूव करते हैं इसको. So what will we take? First of all, let me draw x axis and y axis. So let's suppose this is my x axis and this is my y axis. Okay. So now what I will do, let's suppose I will draw a line. So this is my line. Let us suppose this is line. Okay. So I will name this now. So ये हमारा x axis है and this is my y axis. So this is my y. Now let's name this line as A. It has a coordinates, let's suppose x1 comma y1. Let's suppose here it's my b, x2 comma y2. Okay. Now what will I do? Let's suppose यहाँ पे हमारे पास एक point P है, वो इसको divide करता है in the ratio m is to n. That means I will use the another color. m यहाँ पे है, ये n है, m is to n में divide करता है. Okay. Now first of all what will we do is that सबसे पहला चीज हम करेंगे, हम A से क्या करेंगे काम, A से एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे यहाँ x एक्सिस पर. इसी तरह इस पॉइंट P से भी डालेंगे एक परपेंडिकुलर लाइन और इसी तरह B से भी एक परपेंडिकुलर लाइन डालेंगे. ठीक है, तो चलिए बेटा इसको देख लेते हैं. So this is your perpendicular line, this is also perpendicular and this is also perpendicular. Let's name it as L, let this is N, let this be M. उसके बाद from this point A, we'll again draw a perpendicular line on PN. So what will we do? Like this. Okay. So from this point P, again we'll draw a perpendicular on BM. Okay. So I will name this now. So let's suppose we'll name this as H. And let's suppose इसको कुछ रखते हैं. Let's suppose K रखेंगे. Clear? So these are all 90 degrees. Now, so first of all, I will write these things. Okay, these statements I will write. So what we did is that first of all, I will write here, draw AL, comma, PN, comma, BM perpendicular to the x-axis. Okay, here is AL, PN and BM perpendicular to the x-axis, and then draw AH perpendicular to the PN and ये AH है and PK perpendicular to the BM. Clear? Okay. So now the next step will be, let's calculate, this is O, this is my O. Now can you tell me what is my this OL? This is very easy. OL will be my x1. Why? Because this is the x coordinate of A and x coordinate of A is x1. So I can write OL is equal to x1. Okay. So what is my ON? So same is the case with ON. ON मैं लिख सकता हूँ x के बराबर. हाँ, ON is your x. Okay. Then what is your OM? अगर मैं OM तक जाऊंगा, ये वाली distance, ये आपकी होगी x2. So OM will be your x2. In a same way, I can say that this AL will be your y1. AL will be y1 and this PN will be y. And this BM will be your y2. Okay. So now what will we do? अगर हम AH निकालेंगे बेटा, आपको नहीं लगता AH और LN सेम होगा? बिकॉज दिस इज अ रेक्टेंगल, क्योंकि ये सारा 90 है, ये भी 90 यहाँ पे ये भी 90 है, तो रेक्टेंगल बनेगा. So that means AH will be equal to LN. So I can write AH is equal to LN and that is equal to the, मैं इसको लिख सकता हूँ LN को ON minus OL. This much distance को इतनी distance अगर कट करेंगे तो वो बनेगा ना LN. So I can write it as ON minus LN. And what is ON? ON मैंने ऊपर ही लिखा, it's X minus what is LN? LN तो यहीं पे होगा. Okay, sorry ये गलत हो गया यहाँ पे actually. So actually मुझे लिखना था ON minus OL. तो यहाँ पे हम लिखते हैं ON minus OL. So what is OL? OL is your X1. Okay. तो सेम हम क्या करेंगे काम, आप मुझे बताइए बेटा,
We can find out in the same way pH as well. So can I find pH? Yes, pH can be written as this pH. pH can be written as Pn minus Hn. Pn minus Hn. Clear? बट व्हाट इज योर Pn? Pn को फिलहाल ऐसे ही रखेंगे, माइनस Hn. देखिए बेटा, Hn, your Hn is actually Al also, okay, because it is a rectangle. So Hn के बदले Al लिख सकते हैं. What is your Pn now? Pn is your y minus what is your Al? Al is your y1. So हम इसको ऐसे लिख सकते हैं. Now the next thing, हम क्या काम करेंगे? We'll calculate this Pk. So can I write Pk will be equal to your Nm? Yes, I can write it. And this Nm can be written as Om minus On. Om minus On. That means this much distance को अगर हम ये वाली distance कट करेंगे तो बचेगी ना ये वाली distance Nm वाली. तो यही मैं बोल रहा हूँ. Clear? So Om minus On. What is your Om? So Om is your x2. What is your On? On is your x. So हमें Pk भी मिल गया x2 minus x. Okay. Now the next thing what will we do is that अब हम निकालेंगे Bk, ये वाली distance Bk, ये last distance निकालेंगे Bk. So Bk will be equal to what? Bk will be equal to Bm minus Km. Bm minus Km. और I can write it as Bm minus Km के बदले मैं लिख सकता हूं बेटा Pn. Yes, because it's a rectangle. So I can write instead of Km, I will write Pn. So Bm किसके बराबर है? Bm अगर मैं देखूंगा, this is the y coordinate of B point. So that is y2. क्योंकि मैंने यहां पे भी लिखा है Bm. Bm is your y2 and minus Pn. Pn यहीं पे है, Pn is your y. Okay. तो अब हमारे पास सारी चीजें मिल गई. क्या क्या मिल गया? AH भी मिल गया. जी सर यहां पे है, ये हमारा AH है. Clear? I will use the another color. So this is our AH. Yes. Okay. pH भी मिल गया. हाँ, pH कहाँ पे है? ये हमारा पास ये भी मिल गया. PK भी मिल गया. हाँ, PK ये वाला है. चलिए, और BK भी मिल गया. ठीक है, वो यहाँ पे है. अब देखिए क्या करें, काम करेंगे. अगर मैं ट्रायंगल AHP लूंगा और ट्रायंगल PKB लूंगा, आपको नहीं लगता है बेटा ये दोनों सिमिलर होंगे? ठीक है, अब बोलोगे आप कैसे सिमिलर है? देखिए असल में क्या बात है, ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री है. मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं. ये जो ये वाला ट्रायंगल है PKB और AHP, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल K और एंगल H 90 है. सबसे पहला चीज. अब दूसरा कौन सा एंगल बराबर है? देखिए, क्या PK परपेंडिकुलर है ना इसके BM के, और AH भी परपेंडिकुलर है PN के, मगर ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस. दैट मींस ये जो ये AH होगा एंड PK होगा, ये पैरेलल होंगे आपस में. और अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे. क्लियर? ये आपने पढ़ा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स किसको बोलते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि AHP एंड PKB these are similar. So I will write here. So since triangle AHP is similar to the triangle PKB, okay, if these two triangles are similar, can I write therefore I can write their sides are in the ratio. So I will write AP, देखिए AP by PB या BP भी लिख सकते हैं आप. Okay, that is equal to AH by PK. Clear? And that is equal to, yes, PH by BK. Clear? Now what is AP by BP? Let's look into the diagram. So AP is actually your M. यहाँ पे ये है M. And PB is your N. So instead of these two things, I will write M by N. Clear? I hope it's clear. AH, what is your AH? AH यहाँ से है x minus x1. So I will write instead of AH,
I'll write x minus x1 divided by pk. Pk, where is pk? X2 minus x. So I will write here x2 minus x. And that is equal to ph by bk. देखिए बेटा ph है y minus y1. So I will write y minus y1 divided by bk. Where is bk? Bk is there. y2 minus y. So y2 minus y. Okay. So, or I can say that I can write this in two ways. M by n is equal to x minus x1 divided by x2 minus x1. Okay. तो यहाँ पे मुझे लगता है हमने यहाँ पे गलत लिया. pk, what was pk? pk was x2 minus x actually. So this is not x2 minus x1, this is x2 minus x. Okay, this is x2 minus x. So this is equal to, and can I write the next statement that m by n is also equal to y minus y1 divided by y2 minus y. So now the problem is solved. कैसे? इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो ये आएगा एम एक्स टू माइनस 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 देखिए माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन. व्हाट आई डिड, मैंने ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये एन इसके साथ मल्टीप्लाई किया. ठीक है, एम एक्स टू माइनस एम एक्स इज इक्वल टू एन एक्स माइनस एन एक्स वन. यहां से क्या मिलेगा, एम वाई टू minus my will be equal to ny minus ny1. Okay, so these are the two equations. So let's, अब हम क्या करेंगे काम, ये जो हमारे पास ये mx है यहां से, इसको मैं शिफ्ट करूंगा यहां से. ठीक है, तो और आई कैन राइट mx2, ये जो प्लस माइनस nx1 है ये यहां पे शिफ्ट हो जाएगा प्लस nx1. क्लियर? तो इज इक्वल टू आ जाएगा nx, और अगर मैं पहले यही शिफ्ट करूंगा ये बनेगा mx प्लस nx. एंड सेम यहां पे भी ऐसा ही करेंगे. तो बेटा क्या करेंगे काम, ये जो my सॉरी यहां पे हम करेंगे काम, ये जो my है इसको शिफ्ट करेंगे यहां से, और ये जो ny1 है इसको यहां से शिफ्ट कीजिए. तो ये बनेगा my2 प्लस ny1 विल बी इक्वल टू my प्लस ny. ठीक है, ये एम वाई मैंने यहां से शिफ्ट किया, एम वाई यहां पे आ गया, और ये एन वाई वन मैंने यहां से शिफ्ट किया तो ये बनेगा प्लस, क्योंकि माइनस था ये प्लस, ये माइनस है यहां से प्लस बनेगा. और जरा इससे बेटा एक इसको लिख सकते हैं हम एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा एम प्लस एन. एंड यहां से मैं लिख सकता हूं एम वाई टू प्लस एन वाई वन इज इक्वल टू ym प्लस n. तो उसके बाद मैं यहां पे दिखा लेता हूं, लेट्स यूज अनदर कलर. तो और आई कैन से दैट अगर मैं ये m प्लस n डिवाइडेड में चढ़ा दूं तो ये बनेगा ना मुझे x इज इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन डिवाइडेड बाई m प्लस n. तो इसी तरह अगर मैं यहां से ये m प्लस n डिवाइड में चढ़ा दूं यहां तो क्या बनेगा, y विल बी इक्वल टू एम वाई टू plus ny1 divided by m plus n. So this was all about the section formula. Now इसके कुछ cases भी है. ठीक है, तो हमने देखा section formula को कैसे हमने derive कर दिया. अब कुछ इसके cases भी है वो देख लेते हैं. देखिए बेटा कुछ cases है, नोट हम लिखते हैं. अगर हमारे पास p पॉइंट है, let's suppose I will use the, ये हमारे पास a है, this is x1, y1 and this is over b, this is x2, y2. और हमारे पास p पॉइंट जो है वो डिवाइड करता है इन द रेशियो 1:1 में इसको. इसका मतलब mb1 है और nb1 होगा, तो फिर एक p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो फिर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो होंगे वो हो जाएंगे m के बदले भी n देना है, सॉरी m के बदले भी 1 और n के बदले भी 1 देना है. दैट मींस आपको आ जाएगा m, दैट मींस 1x2 प्लस 1x1 डिवाइडेड बाय 1 mb1 प्लस 1, क्योंकि हमें पता है ना फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 है ना. अभी देखिए यहां से फॉर्मूला mx2 कहां गया, mx2 प्लस nx1. सो आई विल राइट सेम mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n. तो दूसरा क्या है my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाय m प्लस n.
सो सेम इज द केस, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1 इंटू y2, क्योंकि m आपका 1 है, प्लस n के बदले भी 1 आएगा, इंटू y1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। इसको एक्चुअली बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, दिस एक्चुअली कॉल्ड मिड पॉइंट। एक होती है मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड द मिड पॉइंट फॉर्मूला, बिकॉज ये पी पॉइंट जो है ये ए बी को बिल्कुल बीच में डिवाइड कर रहा है, मिड पॉइंट पे डिवाइड कर रहा है। सो आई कैन राइट दिस एज x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, वो आपको क्या कर रहा है, वो आपको बिल्कुल मिड बीच में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:1 में डिवाइड करता है ए बी को। तो आप सीधे लिखोगे उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे पॉइंट पी के, वो होंगे x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, इसी तरह y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो ये हो गया एक चीज। अब दूसरा चीज क्या करना है आपको, दूसरा नोट में लिख सकता हूं यहां पे, नोट नंबर 2। अगर आपके पास क्या होगा, हम क्या काम कर सकते हैं, देखिए अगर हमारे पास रेशियो होता था अभी तक m:n, ओके, और आई कैन राइट दिस एज m, अगर इस n को मैं यहां पे शिफ्ट करूंगा, ये बनेगा m/n:1। लेट्स कीप दिस m/n एज lambda, so or I can say lambda is to 1, okay, where lambda is equal to m/n, okay, so then the ratio will become lambda is 1, okay, lambda is to 1। तो अगर आपको तब दिखना होगा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सो क्या कैसे लिखोगे आप बेटा, सो आपको सीधे लिखना है देयरफॉर द सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स, अगर आपके पास रेशियो होगा लैम्डा इज टू 1 में या k इज टू 1 में, तो सेक्शन फॉर्मूला जो होती है वो कुछ ऐसे बनती है, द सेक्शन फॉर्मूला बिकम्स, क्या बनेगी, तो m के बदले लैम्डा देना है, तो इसका मतलब लैम्डा x2 प्लस 1 इंटू x2, x1 आएगा x1 ही, डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 प्लस y1 डिवाइडेड बाई लैम्डा प्लस 1। ये कहां से हमको मिल गया, सीधे हमने इस इक्वेशन में ये जो ये सेक्शन फॉर्मूला है, वहां में हमने m के बदले लैम्डा दिया, क्योंकि यहां पे अब लैम्डा बन गया, और n के बदले दिया 1, सो वहां से हमको सेक्शन फॉर्मूला चेंज हो गई। ठीक है, अब सेक्शन फॉर्मूला को आप याद कैसे करेंगे, ठीक है, ये कैसे आपको याद रहेगी, ठीक है, तो वो देख लेते हैं। सो ये अगर हमारा a पॉइंट है x1, y1, और ये हमारा b पॉइंट है x2, y2, लेट अस सपोज दिस इज माय पॉइंट P, ये डिवाइड करता है इस लाइन को इन द रेशियो m:n, ठीक है। तो क्या करेंगे काम, ये जो n है इसको मैं ऐसे एरो दूंगा, a की तरफ एरो, और ये जो m है इसको मैं दूंगा b की तरफ एरो। अब देखिए लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, जरा बोलिए अब क्या कैसे आप लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P कैसे लिखोगे आप लिखते हो, हाँ m, आप लिखते हैं mx2, क्लियर। तो m को कहां आपने लिया, देखिए m को एरो कहां पे आ रहा है, x2 के साथ, तो आप लिखेंगे mx2 प्लस n कहां जा रहा है, n जा रहा है x1 की ओर, तो n x1 डिवाइडेड बाई, फिर पता ही m प्लस n। इसी तरह m कहां से जा रहा है, y2 की ओर, तो m को y2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n कहां से जा रहा है, y1 की ओर, तो n y1 लिखेंगे डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम स्टॉप करते हैं अभी, ठीक है।